أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلات. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، سرًا و علانیہ، چھپ چھپ کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی، فلہم اجرہم، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس مال کے خرچ کرنے پر اجر عظیم دیتا ہے، عند ربہم، جو وہ اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہ دنیا میں اجر عظیم ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم ہے، اور اس کا ایک اور فائدہ ہے جو آخرت کے ساتھ خاص ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ قیامت کے دن نہ تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ وہ خوف سے بھی بچے ہوئے ہوں گے، غم سے بھی بچے ہوئے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں میں اور محبتوں میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ جو سخاوت کرنے والا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے بن جاتے تھے۔
اور रमजान में जब जिब्रील अमीन आपको आकर मिलते तो आपकी शान ये हो जाती कि आप बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका किया करते थे। वकाना यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजान फयुदारिसुल कुरान फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदा बिल खैर मिन रिहिल मुरसला। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रोज जिब्रील अमीन रात के वक्त तशरीफ लाते और मुलाकात करते और आपसे कुरान करीम का दौर फरमाते। बस यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये जिब्रील से मुलाकात, इसके अंदर आपका मामूल मुबारक ये था कि बहुत तुंद और तेज हवाओं से भी ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में सखावत करने वाले बन जाते थे। इसीलिए जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, ला हसदा इल्ला फिस्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान व हुवा यतलूहु आना अल-लैली व आना अन-नहार व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन व हुवा युनफिकुहु आना अल-लैली व आना अन-नहार। फरमाया दो लोग ऐसे हैं कि उनसे रश्क करना शरीयत में जायज करार दिया गया है। एक वो आदमी है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम अता किया है, वो तिलावत और अमल की तौफीक दिया गया है, फिर वो इसके साथ रात और दिन की घड़ियों में अल्लाह का जिक्र करता है और क़याम करता है। और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ से अताशुदा माल में से दौलत अता की, वो उसे अल्लाह के रास्ते में दिन और रात में खर्च करता रहता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ऐसा है कि काबिल रश्क है, उससे रश्क करना और उससे मुकाबला करना बनता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उससे रश्क करने की इजाजत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म उतार रहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 245, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना फयुदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। फरमाया कोई तुम में ऐसा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतरीन कर्ज दे दे। बस अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह ताला उस कर्जे को जो असल में अल्लाह ही का है, अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा करके अता फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ही तंगी और कुशादगी फरमाने वाला है और तुम सब उसी की तरफ पलटाए जाओगे। अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मर्जी के मुवाफिक देने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका माल दुनिया में भी बढ़ा देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका माल आखिरत में भी बढ़ा देगा। इसीलिए सूरह बकरा आयत नंबर 272 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लोगों ये समझो शैतान तुम्हें वहम दिलाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो तुम्हारा माल खर्च हो जाएगा, तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये माली मामला हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, तुम जितना अल्लाह के रास्ते में दोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका सारा का सारा अजर तुम्हें ही बढ़ा चढ़ा करके वापस देगा। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, जो तुम अल्लाह की रजा के लिए माल अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका अजर तुम्हें मल्टीपल होके तुम्हें बढ़ा चढ़ा करके दिया जाएगा। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, और अल्लाह की शान ये है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो तो अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ाता है, युवफ़्फ़ा इलैकुम बढ़ाता है व अंतुम ला तुज़लमून। दुनिया में तो शायद कोई तुम पे जुल्म करे, अल्लाह की शान यह है अल्लाह के यहाँ कोई जुल्म नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे नफकात को, तुम्हारे अतियात को, तुम्हारे दिए हुए माल को पालता है, बढ़ाता है, चढ़ाता है, लंबा करता है, चौड़ा करता है। मिस्लुल फलूवा, जैसे कि कोई आदमी अपने घोड़े के बच्चे को खरीदता है या उसके यहाँ घोड़ा बच्चा जनता है तो क्या होता है, उसको पालता है, उसको बड़ा करता है। क्यों बड़ा करता है? कि ये बड़ा होकर मेरे लिए सूदमंद नाफे बनेगा, मेरे लिए फायदेमंद बनेगा, इसलिए उसको पालता है, परवान चढ़ाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे नफकात को इस तरह परवान चढ़ाता है, बड़ा करता है, लंबा चौड़ा कर देता है, यहाँ तक कि कल क़यामत के दिन जब तुम आओगे ये समझते हुए कि हमने तो बहुत मामूली नफका अल्लाह के रास्ते में दिया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जबल ओहद के बराबर बढ़ा करके और तुम्हारे नामे अमाल में रख देगा कि ये सारा का सारा तुम्हारा नफका है,
जो तुमने अल्लाह के रास्ते में दिया था अल्लाह इसको दे रहा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 261 इरशाद फरमा रहा है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने मालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलती हैं, फिर हर बाली में अल्लाह की कुदरत कि हर बाली से 100 दाने निकलते हैं। फिर अल्लाह ताला जिसे चाहता है बढ़ाता है, चढ़ाता है, और अल्लाह ताला ही कुशादगी वाला और इल्म वाला है। आपका नफा किस तरह आपको बचाएगा ये आपको गुमान नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस हद तक रग़बत दिलाई कि सुनन अरबा की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ बकरी का जला हुआ खुर हो, बकरी का जला हुआ खुर, बकरी का जला हुआ पाँव भी हो, तो तुम वो भी पकाओ तो उसमें शोरबा बढ़ाया करो और अपने पड़ोसी के यहाँ उसमें से हिस्सा भेजा करो। मुमकिन है कि उसके यहाँ ये भी मौजूद ना हो। हमारे यहाँ कराची वाले बहुत शौक से सिरी और पाए खाते हैं, जानवर के पाए बड़े शौक से खाते हैं और पकाते हैं। अरबों के यहाँ ये कचरा समझा जाता है, उनके यहाँ सिरी और पाए उठा के कचरे में फेंक देते हैं। उनके यहाँ इसकी रग़बत नहीं, कोई खाना चाहे तो कहते हैं ले जाओ, और कोई ना खाना चाहे तो उनके यहाँ खाल, सिरी और पाए ये सब कचरा है, उनके यहाँ इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो सब इसको जीरो समझते हैं। अमूमन उठा के कसाई कचरे में फेंक देते हैं कि ये भी कोई खाने की चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदना चीज के लिए पाया इस्तेमाल किया। आपके यहाँ कीमती डिश है, उनके यहाँ बिल्कुल अर्जा है। फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ बिल्कुल हल्की से हल्की चीज हो, उस हल्की चीज से ताबीर करने के लिए पाए का जिक्र किया कि अगर तुम ये पकाओ और वो भी जल जाए तब भी उसमें शोरबा बढ़ा के अपने पड़ोसी का निकालो, क्या पता कि उसके यहाँ ये ना हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले में तुम्हें अजर जजील अता करे। नौयत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, सहीहैन की रिवायत है, फरमाया अनफिकू, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च किया करो, वत्तकुन्नार, और जहन्नम की आग से खुद को बचाने की कोशिश किया करो, वलौ बिशक्की तमरा, अगरचे खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों ना हो। अब खजूर की क्या औकात है? खजूर अरबों के यहाँ बिल्कुल अर्जा फल है कि वो उठते बैठते खाते हैं। जैसे मैंने गुज़िश्ता जुम्मा भी कहा कि उनके यहाँ जानवर भी खजूर खाते हैं और इंसान भी खजूर खाते हैं, और उनके यहाँ खजूर ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ एक बिल्कुल आम सी कोई चीज हो जिसको आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हो। फरमाया वलौ बिशक्की तमरा, अगर खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, इससे भी अगर तुम जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो जहन्नम की आग से बचो। खजूर का टुकड़ा आपको जहन्नम की आग से कैसे बचाएगा? अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस इस बात पे दाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एक टुकड़े को जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए वक़्फ किया गया, सदका किया गया, नफका किया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बढ़ाता है बहुत लंबा चौड़ा करके नामा अमाल में दर्ज फरमा देता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनाम है। इसीलिए फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ाता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत वाला और जानने वाला है। इस आयत के अंदर बहुत खतरनाक बात है, अगर हम गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुला चैलेंज कर रहा है। एक आदमी कहता है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में लाखों रुपए दिए हैं तो मैं जन्नती हूँ। अल्लाह कहता है सवाल पैदा नहीं होता है, आपके पास इख्तियार नहीं है कि वो माल अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनफिक के बारे में फरमाया जो अपना नफका अल्लाह के रास्ते में दिन और रात खर्च करता है। फरमाया क़यामत के दिन जब वो आएगा तो अल्लाह पूछेगा ये बता तूने दुनिया में क्या अमल किया, वो कहेगा मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कज़ब्ता या अब्दी, ऐ मेरे बंदे आप किसी बयानी फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों भाई, इसने तो किया था। फरमाया आपने बिल्कुल इसलिए नहीं किया, आपने ये नफके इसलिए किए, ये खर्चे इसलिए किए, लियुराइन्ना तबिही, ताकि लोगों में आपका दिखावा हो जाए। इस दिखावे की वजह से अल्लाह ने आपके सारे माल को रद्द कर दिया, और इसके मुकाबले में वो सहाबी जो पूरी रात मेहनत करता है और उसे जौ के दाने मिलते हैं, चंद जौ के दाने जो मुश्किल से 1 पाव या 1.25 पाव से ऊपर नहीं दे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस जौ के दानों के लिए बिलाल से कहा कि अपनी झोली फैलाओ,
और जितना माल जमा किया है इस पर इनको बिखेर दो, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दानों में वो बरकत रखी है, वो इखलास और कुव्वत रखी है, जिनकी वजह से अहलुल मदीना के ये माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूल हो जाएगा। इसीलिए फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है माल को बढ़ा देता है, जो अल्लाह की रजा के लिए नफा करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए ढेरों ढेर इजाफा फरमाता है। जनाब अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया जा रजुल बिनाक़तिन मख्तूमा फक़ाला हाज़िही फी सबीलिल्लाह फक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक बिहा यौमल क़ियामा सबउमिअति नाक़तिन कुल्लुहा मख्तूमा। एक आदमी महर लगी हुई सुधी हुई महंगी ऊँटनी खरीद के लाया और लाके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा दी और कहा कि ये इसकी महर पकड़ लीजिए, ये मैंने अल्लाह के रास्ते में दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने ये अल्लाह के रास्ते में एक ऊँटनी दी है, तू गारंटी ले ले अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे 70 ऊँटनियां महार वाली कीमती अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इजाफा फरमाता रहेगा और अल्लाह ताला तेरे अजर में कोई कमी नहीं करेगा। सवाल पैदा होता है ऊँटनी दुनिया में देना तो नाफे है, आखिरत में देने का क्या मकसद है? तो आखिरत में देने का मकसद क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर बहुत आला शान अता फरमाएगा और उस आला शान का रुतबा ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में दी हुई हर चीज को मल्टीपल इंटू 700 कर देगा। तो जब 700 टाइम्स उसको मल्टीपल किया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर बढ़ा चढ़ा करके अजर जजील अता करेगा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है। इसीलिए जनाब खुरैम बिन फातिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, मन अनफका नफकतन फी सबीलिल्लाह कुतिबत लहू सबउमिअति ज़िअफिन, जो अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ, शर्त है इखलास होना, शर्त है खुलूस होना, शर्त है ईमान होना, शर्त है दुनिया के दिखलावे से बचना। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च कर देता है, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको मल्टीपल इंटू 700 कर देता है और 700 टाइम्स उसको मल्टीपल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस करता है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जमा नहीं करता। अल्लाह को तुम्हारा माल नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर इस माल की जरूरत अल्लाह को होती तो अल्लाह तुम्हें देता ही क्यों, अल्लाह सारा अपने पास रख लेता। लेकिन अल्लाह माल से बेनियाज है, उसे माल की जरूरत नहीं है। आपको माल की हाजत है, अल्लाह कहता है मैं देता हूँ, तुम वापस मुझे करो तो मैं बढ़ा चढ़ा करके तुम्हें वापस दे दूंगा और तुम्हारी जरूरियात में उसकी वजह से बरकत पैदा कर दूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत को समेटने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में अपने माल को खर्च करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जनाब सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अफजलु दीनारिन युनफिकुहु रजुलु दीनार युनफिकुहु अला अयाली व दीनारुन युनफिकुहु रजुलु अला दाब्बतिही फी सबीलिल्लाह व दीनारुन युनफिकुहु अला अस्हाबिही फी सबीलिल्लाह। फरमाया कि सबसे ज्यादा जो खर्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मंजूर होता है वो है जो इंसान अपने बीवी बच्चों पे करता है, उनकी जायज हाजतों को पूरा करता है, उनकी जरूरियात को पूरा करता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बड़ा मुकर्रब है। फिर वो दीनार अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है जिसे इंसान अपनी उस सवारी पे खर्च करता है जिस सवारी को अल्लाह के रास्तों के लिए रखा है। उसके बाद वो दीनार अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है कि जो अल्लाह के बंदों पर अल्लाह के रास्तों में खर्च किया जाता है। तो जब अल्लाह के बंदों पर अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नज़म को चलाने के लिए, अल्लाह की शरीयत की इशाअत के लिए खर्च किया जाता है, वो अफजल तरीन दीनार है, अफजल तरीन रकम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बहुत ज्यादा बरकतें अता फरमा देता है। इसीलिए शरह सुन्नह में एक मिसाल देकर समझाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मन फत्तरा स्वाइमन औ जाहदा गाज़ियन फलहु मिस्लु अजरिही, जिसने किसी रोजेदार का इफ्तार कराया, रोजा रखने वाला कोई और है, ये अपना नफका खर्च करता है कि ये मेरे पैसे से इफ्तारी कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने इतना बड़ा अजर पाया जितना अजर रोजा रखने वाले ने पाया। इसी तरह एक आदमी ने किसी मुजाहिद को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए तमाम सामान से लैस किया, खुद नहीं गया
इसने मुहैया किया सामान, इसने उसकी सहूलियात को मुकर्रर किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसका दर्जा कितना बुलंद होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसका दर्जा इतना बुलंद होगा जैसे ये खुद जिहाद फी सबीलिल्लाह पे जाने वाला और जिहाद फी सबीलिल्लाह में शिरकत करने वाला है। यूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसके लिए बहुत बड़ी शान मुकर्रर हो जाएगी। सूरत आले इमरान आयत नंबर 134, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, पता है ये लोग जिनके नफकात अल्लाह के यहाँ कबूल होते हैं वो कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, ये वो लोग हैं जो आसानियों में और तंगियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं। जब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इनका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ये कामयाब और कामरान हो जाते हैं। इसीलिए सूरह तौबा आयत नंबर 41 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, इनफिरू खिफाफन वसिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तुम हल्के होकर अल्लाह के रास्ते में निकलो या भारी होकर निकलो। जब तुमने इरादा किया कि तुम अल्लाह के लिए कुछ काम करोगे तो तुम बहुत ज्यादा करो या तुम हल्का करो। जब तुम अल्लाह की नुसरत के लिए निकलोगे अपनी जान और अपने मालों के साथ तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर तुम इल्म रखो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका बेहतरीन बदला देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी तुम्हारे दर्जे में कोई कमी नहीं करेगा। क्यों नहीं कमी करेगा? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वला युनफ़िक़ूना नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊना वादियन इल्ला कुतिबा लहुम लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा करके अजर देता है किनको? जो छोटा या बड़ा नफका अल्लाह के रास्ते में करते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने के लिए किसी वादी को क्रॉस करते हैं तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए अजर जजील को लिख देता है, अजर अजीम को लिख देता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए ढेरों ढेर मामलात खर्च करने पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है। फिर एक आदमी कहता है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले, मौलवी लोग, इनका काम होता है ये हर वक्त फंडिंग अपील करते रहते हैं, भिखारी होते हैं ये सारे के सारे, भीख मांगते रहते हैं, पैसे के पीछे होते हैं ये सारे के सारे, मुल्ला पैसे खा जाते हैं, ये कोई अल्लाह के रास्ते वास्ते में नहीं देते। इस तान का जवाब अल्लाह खुद देता है और अल्लाह सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 और 11 में कहता है, अकल के अंधो, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह के रास्तों में खर्च करने से अपने हाथ को रोके बैठे हो। याद रखो आसमान और जमीन की मीरास तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी, तुम्हारे आने से पहले भी, सारी की सारी मीरास ये खालिस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। एक आदमी को जो तौफीक मिली, पता है मक्का नहीं हुआ, चारों तरफ से जुल्म था, चारों तरफ से जबर था, चारों तरफ से मज़ालिम कसीरा थे, चारों तरफ से कुफ्फार की तरफ से मुश्किलात थी। उस वक्त जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया, डरे बगैर, निडर होकर अल्लाह के रास्ते में दिया, उसकी मिसाल दूसरे लोगों की तरह नहीं हो सकती। क्यों? उलाइका आदम दरजा, उसने बहुत बुलंद बाला दरजात को पा लिया। आज भी लोग आपको कहेंगे कि हम ये फजूल काम करते हैं, आप अपने ज़कात सदक़ात अतियात हमें दे दीजिए, हम ये फजूल काम करते हैं, आप हमें ये दे दीजिए, दीनदारों को नहीं दीजिए, दीनदारों को ना दीजिए, मदरसों को ना दीजिए, फी सबीलिल्लाह की मदों में ना दीजिए, हमें दीजिए, हम इससे अपनी अय्याशी और फहाशी करेंगे और हम इससे गैर शरई काम करेंगे, आप हमें दीजिए क्योंकि हम अहल हैं। मदरसे तो जाहिलियत की फैक्ट्रियां, इनको बंद कर दो और इनकी जगह पे हमें काम करने की इजाजत दे दो। आप काम करें, आपको काम करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ऐसा तो काम ना करें कि आप काम का ही बेड़ा गर्क कर दें। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, एक आदमी जो मदरसे में बैठकर 3,000 हजार सफ़ात की किताबें एक साल में पढ़ता है, ये इसको पूरा आलिम कोर्स में 150 से 200 सफ़े पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये उस आलिम से ज्यादा बड़ा आलिम बन गया। उस बेचारे को इबारत नहीं आती, उस बेचारे को कुरान नहीं आता, उस बेचारे को हदीस नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं आता, कहते हैं ये बड़ा आलिम है क्योंकि ये पक्का जाहिल है, इसको कुछ भी नहीं आता। अब ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है
या वो शख्स अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है जो पूरा कुरान पढ़ने वाला और पूरी अहादीस की किताबों को अव्वल से आखिर तक पढ़ने वाला है? आप बताइए कि इनमें अफजल कौन है? एक वो शख्स है जो हर किताब को पढ़ता और सीखता और याद करता है, और इसके मुकाबले में वो है जिसको चंद तस्वीरी लेक्चर दिखा के कहा जाता है कि ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बहुत बड़े मशाइख हैं, इनके लेक्चर सुन लीजिए बस आपको सारा इल्म आ गया। अगर इल्म इसी तरह आने वाला होता तो दुनिया में सारे के सारे मुहद्दिस कबीर बन जाते। लोगों को गलत तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों की मोटिवेशन गलत तरफ की जा रही है, लोगों को दीन से हटाने के लिए ये होशरबा तदाबीर की जा रही है। नतीजा आपके सामने है कि इबादत बिल्कुल खत्म हो गई, दुआएं बिल्कुल खत्म हो गई, अल्लाह से मांगना बिल्कुल खत्म हो गया, अल्लाह के आगे सरबत सुजूद होना बिल्कुल खत्म हो गया। क्या चला? बिदातियों के फतवे, ये बिदती है, ये बिदती है, ये मुनाफिक है, ये फासिक है, ये फाजिर है, ये काफिर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बिला दलील जाहिलियत का अमर हुआ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस सादिक आ गई कि क़यामत से पहले जब इल्म उठाया जाएगा तो क्या होगा? दल्लु व दल्लु बल हुम अदल, ये ऐसे लोग होंगे कि ढूंढने पर भी इनको एक आलिम नहीं मिलेगा जो इनकी विरासत के मसले को हल कर सके। आप यकीन करें, विरासत के नाम पे दौरे कराए जा रहे हैं, विरासत के नाम पे पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और सीखने वालों को ये नहीं पता कि मैं क्या सीख रहा हूँ। बुनियादी असाबुल फुरूज के मसले उसको नहीं आते और वो कहता है कि जी मैं मीरास का माहिर हूँ और मैं मीरास पढ़ाऊंगा। तो आप बताइए वही अमल होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग एक वादी से दूसरी वादी तक दौड़ेंगे, इन्हें कोई मसला हल करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये कब होगा? ये जाहिलियत का दौर होगा जिसमें खुद भी बेइल्म थे, दूसरों को भी बेइल्म कर देंगे। ये क़यामत से पहले बड़ा मामला होगा। तो इससे पहले कि दीनी मदारिस की बसात को लपेट दी जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत को उठा लिया जाए, इंसान को चाहिए कि इंसान गौर व फिक्र करे, इन दीनी इदारों की सरपरस्ती करे, इनको प्रमोट करे, इनको आगे बढ़ाए, इनके सरों पे अपने हाथ रखे, इनके बाजुओं को धकेले और इनको हिम्मत दिलाए कि आप दीन का काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तभी ये उलमा, ये फाजिलीन आगे बढ़कर कामयाब और कामरान हो सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज कहा जाता है कि दीनी मदारिस दुनियावी तालीम के साथ चल सकते हैं, बगैर दुनियावी तालीम के नहीं चल सकते। अच्छी बात है कि सारी तालीम हासिल करनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि एक आदमी मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसे कौन अकल का अंधा ये कहता है कि डॉक्टर उस वक्त बनोगे जब साथ में इंजीनियरिंग आए। जब तक आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप MBBS की डिग्री नहीं ले सकते। कोई उसको कहता है? इसलिए कि दोनों शोबे अलग हैं। इसी तरह दीन की तालीम अलग है और दुनियावी तालीम के शोबे जात अलग हैं। दोनों को ही हासिल करना चाहिए। हम कभी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन दीन के नाम पर दुनिया के स्कूल खोलना और स्कूलिंग करना और ये कहना कि जी हम तो बड़ा दीनदार बना रहे हैं, सारा फोकस स्कूलिंग पे है, तो हम क्यों स्कूलिंग को अब तरजीह दें जबकि स्कूलिंग उनसे ज्यादा बेहतर दूसरी जगहों पे हो रही है। लोगों को बेइल्म समझकर लोगों को गलत तवज्जुहात में धकेलना ये जाहिलियत की दलील है। इसीलिए आपको ये बड़े बड़े जो हजरात जो बहुत बड़े बड़े इदारों को लीड करने वाले मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि ना इनके पास अकल है, ना इनके पास इल्म है, ना इन पे तदब्बुर है, ना इनके पास तफक्को है। ये बिल्कुल खाली हाल बलबाल है। चंद घंटों के लिए मदरसों से गुजरे हैं और ये कहते हैं कि हम बड़े आलिम हैं, हमें सब कुछ आता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कुर्बानी दी जाती है। हजरात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अमल क्या है? जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठते थे, बेहोश होके गिर जाते थे। लोग उनकी गर्दनों पे पांव रख के आगे बढ़ते थे और समझते थे ये फौत हो गया। अबू हुरैरा मस्जिद नहीं छोड़ते थे। दीन के इल्म को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, अपने एफर्ट्स किए जाते हैं, अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना पड़ता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म और इरफान की दौलतों से नवाजता है। लेकिन ये जब कारआमद होता है, जब हम और आप मिलकर इनकी सरपरस्ती करें और हम और आप मिलकर इनका साथ देने वाले बने, तो इंशाअल्लाह ये तरक्की करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह कहता है, ये बात याद रखो, उलाइका आदमु दरजा मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादी व क़ातलू,
वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह के वादे बिल्कुल पक्के और सच्चे हैं। इनके लिए बड़ा दर्जा इसलिए है कि इन्होंने उस वक्त खर्च किया जब खर्च करने का हक था, इन्होंने अल्लाह के नज़म और निजाम को उस वक्त संभाला जब संभालने का हक था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इनके लिए बेशबहा इनामात का ऐलान फरमाता है और अल्लाह ताला इनको कामयाबी और कामरानियों से नवाजता है। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपने नफकात को अल्लाह के रास्तों में देने वाले बनेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल मुझे आपको हम सबको कमा हक़्क़हू मुकम्मल शरिया पे मजबूत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यदफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जो लोग अल्लाह ताला ने ईमान वालों से ऐसे मुंतखब किए हैं कि उनकी जान और उनके मालों को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अगर आप अल्लाह से जन्नत को लेना चाहते हैं तो अपनी जान और अपना माल दोनों अल्लाह के रास्ते में देना होगा। ये लोग अल्लाह के रास्तों में लड़ते हैं जिसमें कत्ल भी किए जाते हैं और जिसमें दूसरों को भी कत्ल करने वाले बनते हैं। जब ये कुर्बानी की इंतहा पर पहुंचते हैं तो अल्लाह भी वादा निभाता है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनकी जानों को रायगा नहीं करता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जन्नत में आला शान अता कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, सूरह बकरा आयत नंबर 268। शैतान तुम्हें हमेशा फकीरी से डराएगा, व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई, और तुम्हें फहाशी के काम करने पे मजबूर करेगा, तुम्हें अय्याशी के काम करने पे मजबूर करेगा। जब हम दीन के किलों की सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बुराई हो रही है, यहाँ बुराई हो रही है, यहाँ फहाशी हो रही है, यहाँ अय्याशी हो रही है, यहाँ पे फलान और फलाने शैतानी उमूर किए जा रहे हैं। इन तमाम से बचने के लिए अल्लाह क्या कहता है, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह ने तुमसे वादा किया है अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। मिनहु व फ़ज़ला, अल्लाह तुम्हें बख्शिश किए हुए लोगों में भी शामिल कर देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह तुम्हें बाफजीलत बना देगा, अल्लाह का वादा है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह की शान ये है कि बहुत ज्यादा वुसअतों को करने वाला और सब बातों को जानने वाला है। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने आप को वक़फ़ करेंगे, अपने मालों को वक़फ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला का वादा है अल्लाह ताला आपको कभी जाया होने नहीं देगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्ला वला शफ़ाअ वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। लोगों, उस दिन से पहले पहले खर्च कर लो जिस दिन कोई किसी की दोस्ती निभाने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश करने के लिए आगे नहीं आएगा। उस दिन जिन्होंने कुफ्र किया वो बदतरीन जुल्म के मर्तबे में होंगे, अल्लाह ताला की पकड़ में होंगे, अल्लाह ताला उन्हें नहीं छोड़ेगा। लिहाजा उस दिन से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्तों में जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे खर्च करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अल्लाह ने जो तुम्हें अपनी पाकीज़ा कमाई से दिया है तुम उससे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। अल्लाह तुमसे ये चाहता है, अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम गड़बड़ वाले पैसे को अल्लाह के रास्ते में दो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीही, अल्लाह ताला बुरी चीजों के खर्च करने के कसद को कबूल नहीं करता। जो लोग अपने कबीह माल को, खराब माल को अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको रद्द कर देता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
इसको कबूल नहीं करता। फिर जब अल्लाह के रास्ते में दे तो अल्लाह क्या चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जतला कर ना दिया करो, तकलीफ पहुंचाकर अपनी नेकियों को बर्बाद ना किया करो। उस शख्स की तरह हरगिज ना हो जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे, ना अल्लाह पर ईमान रखे, ना क़यामत के दिन पे ईमान रखे, उसकी तरह हरगिज ना हो। अब लोग मालों को खर्च करते हैं और मालों को खर्च करने में गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि आपने अपनी बिजनेस मेंटालिटीज का हिसाब लगा लिया, अपनी कैश बुक को चेक किया और अपने डेबिट क्रेडिट को देखने के बाद आपने अपनी मैनुअल कैश बुक बना ली कि आपका ये खाता है, इतने एसेट्स हैं, इतने पैसे देने हैं, इतने लेने हैं, एक साल का पूरा हिसाब बनाया। अब उस साल के हिसाब में अगले साल तरमीमात हो जाती हैं, कारोबार ऊपर और नीचे होता है। अगर एक साल कारोबार 1 करोड़ रुपए का है तो अगले साल 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का हो जाएगा। इंसान ये कहता है कि मैंने एक दफा एज्यूम किया है कि मेरे पास कारोबार में एसेट्स जो है वो 1 करोड़ के लगे हैं, तो मैं 1 करोड़ के हिसाब से ज़कात दिए जा रहा हूँ। अब माल बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, ना ये दोबारा हिसाब लगा के बढ़ा रहा है, ना ये दोबारा हिसाब लगा के घटा रहा है। जबकि हो सकता है कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे मुंह में खाक, कि वो इतना कम माल वाला हो गया हो कि उसके ऊपर ज़कात ही ना हो, और हो सकता है कि उसका माल अल्लाह की तौफीक से इतना बड़ा हो कि उसे डबल ज़कात देनी हो। तो ये जो अल्लाह के कर्जे हैं, देने के बावजूद बंदा मकरूज रहा, देने के बावजूद बंदा मकरूज रहा, तो याद रखिए जिस तरह मरने के बाद बुरासा पे कर्जे की अदायगी है, इसी तरह वो कर्जा दूसरी सूरत में भी अदायगी है। 2 सूरतें हैं कर्जे की, दोनों अदायगी वाजिब है। पहला कर्जा दुनिया का कर्जा है, जो दुनिया वालों का लिया हुआ है वो देना होगा। दूसरा कर्जा अल्लाह का है। अल्लाह के कर्जे में 3 चीजें बुनियादी हैं। नंबर 1, इस्तिताअत थी, हज बैतुल्लाह नहीं कर सका तो हज बदल करना होगा। नंबर 2, उसके जिम्मे सियाम थे और उनकी कज़ा वाजिब थी और ये कज़ा नहीं कर सका तो उनके फिदिया देना वाजिब होगा। और नंबर 3, इसके ऊपर ज़कात वाजिब थी, ज़कात नहीं दे सका तो वो ज़कात अदा करना बुरासा पे वाजिब होगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि अब्बा अम्मा मर गए, बस लड़ना शुरू किया कि माल बांटो, माल बांटो, माल बांटो। माल तो जरूर बांटो मगर कर्जा भी तो बांटो, जो जिम्मेदारियां बाकी हैं वो भी तो अपने कंधों पे लो। हम ये काम नहीं करते, बल्कि हम अंदोनाक अपने मामलात में लग जाते हैं। लिहाजा अल्लाह के लिए आप जिस चीज को भी एज्यूम करेंगे उसके अंदर आप बिल्कुल सेंसिटिविटी दिखाइए, बहुत ज्यादा बुर्दबारियत दिखाइए। अगर आपके कारोबार में इजाफा हुआ है तो आप ज़कात को मजीद देने के पाबंद है, और अगर अल्लाह न करे कमी हुई है तो उसको डिडक्ट करने के पाबंद है। एक शुरू का खाता अब्बा के जमाने का चला आ रहा है, जमाने से चला आ रहा है, बस उसी को चलाए जा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अगर अल्लाह का कर्जा आप पर बाकी रहा और हट धर्मी दिखाई गई तो अल्लाह निकलवाना जानता है, अल्लाह को पता है कि कैसे निकालना है। हम कुछ नहीं कर सकेंगे और एक दूसरे के काम भी नहीं आ सकेंगे। फिर आजमाइशें आती हैं, आफतें आती हैं और इंसान की पकड़ हो जाती है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात के मुआबिक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देने की तौफीक दी है उसको सही तौर पे देने की कोशिश की जाए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दर्जा हो जाए। आखिरी बात कहता हूँ, सूरत तौबा आयत नंबर 60, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह कहता है सदक़ात के मुस्तहिक फुक़रा, मसाकीन, उसको वसूल करने वाले आमिलीन, तालीफ क़ल्बी के काम जिससे लोग ईमान के करीब आए, गर्दनों को आजाद करने के काम, कर्जदारों की मदद करने में, अल्लाह के जुमला काम करने में, मुसाफिरों की मदद करने में तुम अपने मालों को सरफ करो। जितना तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में इतना बड़ा अजर पाओगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकर्रर करदा फरीजा है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। जब इंसान अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस करेगा तो यकीनन अल्लाह सुबहुसरत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। बहुत से लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है,
मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा, या अल्लाह जो गुजर गए उनकी मगफिरत अता फरमा, अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्जों को अदा फरमा, अल्लाह हमें अपने मालों में आपका हक पूरा पूरा अदा करके आपकी नुसरतें अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मा सअलका मिन्हुका अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदक मिन्हुका अब्दुका व नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल बलागु ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक आखिरी बात कहता हूँ, अच्छी तरह पल्ले बांध लो। आज 21वीं शब होगी, अब ठीक 9 रातें या 10 रातें बाकी हैं। इन 9 रातों को गनीमत जानते हुए अपनी मग़फ़िरत के लिए जोर लगाइए, अल्लाह के यहाँ सर बुलंद होने के लिए जोर लगाइए। कुछ पता नहीं अगली जिंदगी हो या ना हो, लिहाजा जितना वक्त है अल्लाह को राजी करें। मैं अल्लाह के आगे दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब के जुमला आमाल में बरकत अता फरमाए, जुमला आमाल को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस रमजान हम सब की मग़फ़िरत ताम का ऐलान नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।